Very good morning. Today, date is 21 July 2021. So we are here to continue with the chapter when people rebel, right? So we had started this chapter yesterday itself when we were discussing that what are the reasons why the people decide to go against the higher authorities. What's the reason are that why they try to rebel? Why they become the rebel? Why they want to put against the higher authorities? So we had started with the reasons, right? We had started with the reasons उसको हमने divide कर, right? Reasons we had divided in, I mean not reasons but the people they had been divided. कि एक ruling class थी, right? Ruling class में हमने कैसे पढ़ा था कि I'm just going to recapitulate it. In the ruling class we had studied कि how the different policies that were started by the British, like subsidiary lines है या doctrine of lapse है, उसके अंडर उन्होंने कितने सारे जो रूलर्स थे, कितने सारे I mean स्टेट जो थे उनको अपने अंडर मिला लिया, right? Like doctrine of lapse से what they did कि जो क्वीन ऑफ झांसी थी, झांसी लक्ष्मीबाई जो थी, she was a widow. She had adopted a son, so that son was not recognized as a higher by the Britishers, so she also went against. Then Nana Sahib, who was the adopted child of Peshwa Bajirao too, he was also denied the rights on the pension of his father. Why? Because he was a adopted son, right? So ये भी एक reason था. So और भी reasons थे, like अवध जो था, अवध का कुछ part जो था वो ले लिया गया कि subsidiary lines impose कर दी, right? Secondly, some part was even taken की on the pretext of the misgovernment कि जो अवध का जो नवाब है उसे गवर्नमेंट चलानी नहीं आ रही, उसी कंट्री अपना स्टेट कंट्रोल करना नहीं आ रहा है. So as we are guardians, so it is our responsibility to take care of this state. So उस नाम पे भी इन्होंने स्टेट ले लिया. Plus they had even attacked on the Mughal dynasty. What they did, they had declared that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king will not be staying in the Red Fort, and that will be shifted to some other place. I mean, some other place will be given to them to reside in. And even they had removed Bahadur Shah Zafar, who was the last Mughal king, from the coins also which were minted. Even it was declared that Bahadur Shah would be the last Mughal emperor, and his descendants, they are they will not be called as the kings, they will be called as the princes, right? ये था ruling class के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाने का रीजन. व्हाट अबाउट द पीजेंट्स? किसान जो थे उन्हें टैक्स देना पड़ा और काफी हायर टैक्स था. नॉट ओनली गिविंग द टैक्स बट द वे द टैक्सेस वर कलेक्टेड, that was also not say कि that was not a better way, क्योंकि बड़े हार्श तरीके से टैक्सेस को कलेक्ट किए जाते. सो पीजेंट्स जो थे वो बेचारे उनको लोन लेना पड़ता था टैक्स देने के लिए, और अगर वो लोन रिपे नहीं कर पाते थे, दैट लैंड which they were telling from generations, that was seized by the British, right? So these people gradually lost their lands, right? इसके अलावा इंडियन सिपाहीज जो थे, सिपाहीज जैसे मैंने कहा वर्ड आया है सिपाही से, राइट? सो ये वर्ड आया है सिपाही से, तो ये क्या रीजंस थे व्हाई देयर वाज discontentment among the सिपाहीज फॉर द ब्रिटिश. इसके कुछ रीजंस हमने पढ़े थे कि एक तो उनकी पे, सैलरीज, अलाउंसेस, कंडीशन तो यूरोपियन सोल्जर से कम. प्लस जब प्रमोशंस दी जाती थी तो जो यूरोपियन सोल्जर्स थे उनको बड़ी अच्छी पोस्ट दे दी जाती थी, ये जो बेचारे सोल्जर्स होते थे इनको खास अच्छी पोजीशंस नहीं दी जाती थी. देन क्रॉसिंग द ओशन, दैट वाज अगेंस्ट द religion or against the religious beliefs of the Hindus. Whereas these people, Britishers, they forced them to
they force these people, I mean, to cross the oceans, right? To cross the oceans and then go to Burma and then fight them, right? और उसके बाद जब इन्होंने मना कर दिया कि हमारे रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट है, तो उसके बाद इन्होंने कंडीशन ही रख दी कि जब भी अब रिक्रूटमेंट्स होंगी, जब भी रिक्रूटमेंट्स होंगी तो वो जो रिक्रूटमेंट्स है से उसमें उन्होंने कंडीशन रख दी, द पर्सन विल बी रिक्रूटेड only when the person will be agreeing to move overseas. इसके अलावा जब ये सिपाही थे, कौन से थे, तकरीबन राइट, वहां से जमीनें आई मीन खेती छोड़ के उनको जबरदस्ती भी को सोल्जर्स बना दिया गया। तो जब उन्होंने सुना कि गांव में उनकी जमीनें जो है ब्रिटिशर्स इस ढंग से ले रहे हैं, they fled the villages, and that was also one of the reasons of the discontentment among the peasants and the sepoys or peasant sepoys, right? अब इसके अलावा हम we agree जो ब्रिटिशर्स हैं काफी ज्यादा इंटरफेयर करना हमारा शुरू कर दिया हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में, हमारी इकोनॉमी में, सब जगह, राइट? लॉट ऑफ इंटरफेरेंस वाज देयर, राइट? सो एनी हाउ इन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे, दे हैड डन मेनी गुड वर्क आल्सो, राइट? दे हैड डन मेनी गुड, सो ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं कि उन्होंने इंटरफेयर तो किया, नो डाउट हमारी काफी ज्यादा जो लाइफ थी that was adversely affected, but still many reforms were there that were taken by these Britishers. इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स भी किए थे, या कुछ हम कह सकते हैं बड़े अच्छे काम भी किए थे, लेकिन हम लोग या कह सकते हैं हम लोग कुछ इस ढंग से आप कह सकते हैं प्रेजुडाइज थे, right? Where they felt okay, whatever, even they are having the reforms, that is also against our religion. Anyhow, few reforms were like this also, जो कि हमें बहुत ज्यादा acceptable नहीं थे. See, otherwise, what laws were passed, like sati system was stopped. अभी जो सती सिस्टम स्टॉप कर दिया गया था, एक तो बड़ा अच्छा रिफॉर्म था, which was there in the favor of the women. राइट? इसके अलावा द लॉ वाज मेड फॉर द रीमैरिज ऑफ द विडोज. तो ये जो लॉज थे ये विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए थे, राइट? ये विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए थे. तो ये जब रिफॉर्म्स लिए गए, जब ये लॉज बनाए गए, तो इंडियंस को ये लगा कि हमारा कल्चर है, कि हमारा कल्चर है, लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं वो इस कल्चर में इंटरफेयर कर रहे हैं. They are interfering in this culture, in this tradition, right? इसके अलावा ब्रिटिशर्स जब आए, उन्होंने क्या किया? They had promoted the Western education. They had even English language जो थी, that was also promoted. Problem कहाँ आई? जब around 1830 जो कंपनी थी, कंपनी हम लोग अगेन बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कंपनी थी उसने क्रिश्चियन मिशनरीज से होते हैं नॉर्मली जो अपने रिलीजन को स्प्रेड कर, राइट? तो क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे उनको अलाउ कर दिया दैट दे कुड फंक्शन फ्रीली हियर इन द कंट्री. दे कुड मूव फ्रीली, दे कुड हैव देयर ओन लैंड एंड इवन दे कुड हैव ओन प्रॉपर्टी. उससे क्या हुआ कि 1850 तक आते आते क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन जो था, कि अगर कोई हिंदू या मुस्लिम पर्सन या कुछ और रिलीजन का पर्सन इफ ही वांट्स टू गेट कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, वो बहुत इजी हो गया. दैट हैड बिकम सो इजियर. इसके अलावा द पर्सन हु हैड कन्वर्टेड, कोई भी इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, राइट, टू क्रिश्चियनिटी, तो उन्हें ये अब राइट दे दिया गया कि वो अपने एंसेस्टर्स, अपने जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी में वो हिस्सा ले सकते हैं. अब इंडियंस को ये यहाँ पे लगा कि यस, ये भी कुछ बातें गलत भी है, कि उन्हें लगा कि उनके
उनके रिलीजन को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उनके सोशल कस्टम्स, उनके ट्रेडिशनल वे, जिस ढंग से वो इतने सदियों से, इतने सेंचुरी से वो रह रहे हैं, वो सारे के सारे में इंटरफेयर किया जा रहा है, राइट। तो नो डाउट ऐसे जो रिफॉर्म्स थे, जैसे सती सिस्टम है, विडो रीमैरिज है, उसमें तो हमारे खुद के जो इंडियन रिफॉर्मर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। लाइक सती सिस्टम, इट वाज बैंड ओनली बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ राजा राम मोहन राय, राइट। अब ये जो विडो रीमैरिज है, ये भी हमारे जैसे दयानंद सरस्वती है, राइट, ईश्वर चंद विद्यासागर है, इन्होंने कुछ अपने एफर्ट्स किए जिससे कि जो विडो रीमैरिज है वो भी एनकरेज की गई। ये अच्छे रिफॉर्म्स है, लेकिन इसे भी बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया। Now, what the people of India, how they thought of the British rule, right? यहाँ पर आपकी बुक में दिया हुआ है the list of 84 rules, right? ये मैं I will just read it out for you. Well, that this is an excerpt from the book माझा प्रवास. माझा प्रवास means जब लोग जो थे when they were fleeing from the country, not country, from the states, because of the many, you can say, reasons, right? It was written by Vishnu Bhatt Godse. He was a Brahmin from a Maharashtra family. He and his uncle has set out to attend a yajna being organized in Mathura, right? ये कहीं जा रहे थे, इन्होंने कोई यज्ञ अटेंड करना था, तो वहां ये जा रहे थे, तो रास्ते में, राइट, सो वो जब गए तो there was कैसे many sepoys were there and they heard from them that they will proceed the journey. उनको रास्ते में ये सुना कि एक बहुत बड़ा कुछ इवेंट होने वाला है, कि बहुत बड़ा एक इवेंट होने वाला है जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं ये पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। और इंग्लिश और सिपाही जो थे वो क्या कह रहे थे, दैट द इंग्लिश वर डिटरमाइंड टू वाइप आउट द रिलीजन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, राइट। उन्होंने ये सुना कि सिपाही ये कह रहे थे कि जो ब्रिटिश है वो हमारे रिलीजन को पूरा खत्म कर देंगे। They had made a list of 84 rules and announced these in a gathering of all big kings and princes in Calcutta. They said the kings refused to accept these rules and warned the English of dire consequences. वो इसमें ये डिस्कस करेंगे कैसे जो कंपनी है या ब्रिटिश है वो कैसे हमारे रिलीजन में इतना इंटरफेयर कर रहे हैं। और लोग ये सोच रहे, लोग भी ये सोच रहे थे कि जो ब्रिटिश है दे आर गोइंग टू स्पॉइल, दे आर गोइंग टू स्पॉइल द रिलीजन ऑफ द पीपल, राइट। तो ये एक रीजन था, जैसे बातें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती गई, राइट। तो उसके कारण जो लोग थे दे आल्सो केम टू नो कि ओके सच टाइप ऑफ थिंग इज देयर, राइट। ऐसा कुछ आई मीन the British, they are you can say against, or they are doing something against the Indians. So Indians के बीच में धीरे धीरे एक जैसे रूमर होता है ना, रूमर जो होता है बहुत जल्दी फैलता है, जो रूमर होता है बहुत जल्दी फैलता है, पब्लिक में बहुत जल्दी फैलता है। और होता क्या है कि हम लोग जब रूमर सुनते हैं ना तो हम उसका रीजन तो देखते नहीं है, हम एकदम से आई मीन एकदम से रिएक्ट करना शुरू करते, राइट। सो यहाँ पर भी ऐसा हुआ था कि लोगों को जैसे जैसे पता चलता गया कि ऐसा समथिंग आई मीन इज गोइंग टू बी देयर, सो दे आल्सो यू कैन say you can they also got involved in such event. See, anyhow, जो भी 1857 में हुआ वो क्या था कि एक ऐसा कुछ हुआ हमारी से कि आर्मी में उस समय, और वो जो आर्मी में एक ऐसा इवेंट हुआ तो उसे हम एक म्यूटिनी कह सकते थे। म्यूटिनी क्या होता है कि जब सोल्जर्स अपने ऑफिसर्स को डिसोबे करते, राइट, तो हम उसे एक म्यूटिनी एक्ट कहते हैं, या जब सोल्जर्स कहीं विद थोड़ा सा रिवोल्ट कर देते हैं हम उसे म्यूटिनी कहते हैं। तो आर्मी में ऐसा कुछ इवेंट हुआ, वो इवेंट मैं आपको बताती हूँ।
वो क्या इवेंट था कि the there was a rumor in the army कि न्यू कार्ट्रिजेस जो आई, ऐसी कार्ट्रिजेस क्या होता है कि उस समय जो गन्स होती, गन्स में जब वो गोलियां डालती हैं, कार्ट्रिज जो है वो जब डालनी पड़ती थी तो उसे पहले मुंह से खोलना पड़ता था, उसका आउटर कवर ना मुंह से खोल के फिर उसको लोड करना पड़ता था। आप लोगों ने कभी वो देखा होगा, बड़ी पुरानी मूवीज में तो बहुत आता है जहाँ वो के बड़े बड़े ना हैंड ग्रेनेड्स होते थे ग्रीन कलर के, राइट। तो उसका क्या, उसका पिन निकालना होता है और उसके बाद उसको फेंको, बॉम्ब्स जैसे होते हैं तो उनको फेंको तो वो बॉम्ब फट जाते हैं, ठीक है। तो वो जो आपने कभी नोट किया होगा कि मूवीज में भी जब वो हैंड ग्रेनेड का पिन निकालना है तो जैसे मुंह से निकालेंगे उसके बाद उसको फेंक देते हैं, राइट। एनी हाउ ये जो कार्ट्रिजेस थी ये भी ऐसे ही थी कि इट वाज टू बी ओपन, इसका जो ऊपर का जो कवर था दैट वाज टू ओपन बाय द फ्रॉम बाय माउथ और उसके बाद इसको लोड करना पड़ता। अब ये रूमर फैल गया कि ये जो कार्ट्रिजेस हैं दे आर कोटेड with the fat of cow and pig. They're coated with the fat of cow and pig. उससे हुआ क्या, cow was sacred for Hindus, pig was sacred for Muslims. दोनों ही रिलीजन के जो लोग थे अब वो इसके अगेंस्ट होते, उन्होंने कहा हमने ये यूज ही नहीं करना, ये हमने यूज ही नहीं करना। तो ये थोड़ा सा इनका आपस में एक विद्रोह सा हो गया कि ये अब ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानी, राइट। इसी बात को लेकर बैरकपुर, बैरकपुर जगह है वेस्ट बंगाल में, वहां पर बैरकपुर में मंगल पांडे सिपाही he refused to use these cartridges, right, और उसने अटैक कर दिया बैरकपुर में अपने ऑफिसर्स के ऊपर, राइट। और उसके बाद उसका रिजल्ट ये हुआ कि इसको was hanged. Pandey was caught and he was hanged to death in 1857, 29 March. Right? तो जैसे मैंने बताया कि जब सोल्जर्स के बीच में हुआ तो इट शुड बी अ म्यूटिनी, ये एक म्यूटिनी होनी थी। और लेकिन हुआ क्या, ये म्यूटिनी होने की जगह धीरे धीरे ये जब फैली और इतना कुछ स्प्रेड हुआ कि ये एक म्यूटिनी नहीं रह गई, was not a mutiny, but it turned to a popular rebellion. It turned to be a popular rebellion. क्यों? कि क्यों इतना ज्यादा फैल गया, लोगों तक फैल गया, ये आम लोग इसमें पार्टिसिपेट करने लगे, ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ऑलरेडी द पीपल वर नॉट हैप्पी विद द रूल ऑफ द ब्रिटिश। व्हाट रीजंस आर देयर, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उनकी इकोनॉमी खराब हो गई, उनकी जमीनें ले ली, सोल्जर्स के बीच में डिसएग्रीमेंट है, जो रूलर्स हैं दे आर आल्सो नॉट हैप्पी, राइट। रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं, उनके कस्टम्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, रीजंस पड़ते हैं। तो उन रीजंस के कारण लार्ज पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे बिगेन टू बिलीव दैट कि इन सबका कॉमन एनिमी एक ही है। सबने ये बिलीव करना शुरू कर दिया कि दे हैव अ कॉमन एनिमी, राइट। और इस एनिमी को बाहर निकालना है, इसको हटाना है, इसको रिमूव करना है। तो फर्स्टली वी हैव टू ऑर्गेनाइज, वी शुड टॉक टू ईच अदर, समवन शुड बी देयर हु विल इनिशिएट, समवन शुड बी देयर हु विल इनिशिएट, राइट। और उसके बाद कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज प्लान करनी है जिससे कि ये रूल जो है ये रिमूव हो जाए, राइट। एनी हाउ ये टाइम पीरियड था 1857 का। छोटे छोटे विद्रोह जो थे या छोटे छोटे आप कह सकते हैं ऐसे इंसिडेंट्स जो थे वो होने शुरू हो गए, राइट। ब्रिटिशर्स जो थे, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वैसे बड़े ओवर कॉन्फिडेंट कि हम हमारे अगेंस्ट कोई जा नहीं सकता, राइट। लेकिन ये माना गया कि ये जो 1857 में रिवोल्ट हुआ
That was first of its own kind, first of the kind, which was faced by the company. एंड कंपनी जो थी इंडिया में काफी टाइम से रूल कर रही थी, अराउंड आप कह सकते हैं 100 साल तो हो चुके थे इस टाइम तक। 100 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि इतना बड़ा विद्रोह जो था, इतना बड़ा एक प्रोटेस्ट जो था, वो इनके अगेंस्ट हुआ। दैट स्टार्टेड इन May 1857, जिसने की जो ये जो ब्रिटिशर्स की पावर थी ना, उसको एक बार तो डरा दिया। एटलीस्ट वंस दे थ्रेटेंड इट, राइट। इवन कई तो ये भी मानते हैं, कई हमारे हिस्टोरियंस ये मानते हैं, क्योंकि ये पूरा नॉर्थ इंडिया में फैल चुका, इट वाज स्प्रेड इन द ऑलमोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया, राइट। तो हम कई हिस्टोरियंस हमारे ये मानते हैं कि इट इज द बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस टू कॉलोनियलिज्म एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं, हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि जो कॉलोनियलिज्म था, इट मींस कि जहां पर भी बड़ी कंट्रीज जो थी, कोई छोटी कंट्रीज को अपने कंट्रोल में ऐसे रख रही थी। तो ये जो एक इवेंट हुआ इंडिया में 1857 में, इट वाज द बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस, एक बहुत बड़ा, एक बिगेस्ट, सबसे बड़ा एक आर्म्ड, हथियारों का इस्तेमाल किया गया इसमें, आर्म्ड रेजिस्टेंस था, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ, जो कि पूरे वर्ल्ड में ही कहीं भी नहीं हुआ था। ये मेरठ से पहले तो एक बैरकपुर में इवेंट हुआ, मंगल पांडे वाला, राइट। ये हुआ था अराउंड 29 मार्च। धीरे धीरे उसकी जो न्यूज थी वो कहीं लोगों तक पहुंचने लगी, राइट। और उसके बाद से मई 1857, राइट, मार्च एंड आप कह सकते हैं, उसमें ये मंगल पांडे वाला इवेंट हुआ। लोगों तक खबर पहुंचते पहुंचते 1 महीना लग गया। उस समय को टेलीफोन वगैरह तो होते नहीं थे, राइट। तो उसके बाद आप कह सकते हैं 1-1.5 महीने बाद मेरठ से ये रिवोल्ट जो था ये शुरू हुआ। हाउ दिस वाज स्प्रेड, हाउ द why it started and how the rebellion spread to the different parts of North India, that we will cover it